Hello everyone, welcome you to the Genius Show, a show for the learners and a show of the learners. Uh, a bit of a nervousness in me today just because it is my first solo podcast. I have done two podcasts with my guest speakers, but it's my first solo podcast, so yeah, a bit of hesitation, a bit of nervousness today. Uh, so the genre that I have chose for solo podcast is book review. Books, they have been a great part of my life. When I had no one to speak with, when I had nothing to do, when I had nowhere to go, I found books and they actually changed my life. So I have learned too many things from them, and one of the foremost thing that I have learned from them is getting out of the curriculum books. That's because there is a vast multitude of thinking that we need to explore right now. So, I would be reviewing one of the most recent books that I have read. The name is The Alien Conspiracy, and hope you like that. And so that you don't get bored by listening this monotonous book review, I have tried to divide this podcast in certain timestamps and segments, so you can choose those timestamps according to your wish, and hope it doesn't get you. तो गाइस, आज मैं जिस बुक का रिव्यू करने वाला हूँ उसका नाम है द एलियन कॉन्स्पिरेसी। आप में से बहुत लोगों ने उस बुक को पढ़ा भी होगा, एंड यू माइट बी नोइंग दैट हाउ ब्रिलियंटली एंड यूनिकली दिस बुक हैज़ बिन रिटन। सो जैसे नाम बताता है, इट इज़ समथिंग जिसका स्टोरी लाइन, स्टोरी प्लॉट रिलेटेड है टू सम एलियंस। अब वो एलियंस कैसे हैं, जैसे हम लोग सोचते हैं कि यूएफओज में आएंगे, स्पेसशिप्स में आएंगे, या फिर ख़राब होंगे, हम लोगों को डिस्ट्रॉय करने के लिए आएंगे, या फिर वो हमारी मदद करने के लिए आएंगे। दैट हैज़ बिन डिस्क्राइब्ड इन दिस बुक वेरी एफिशिएंटली। बहुत सारे मिथ्स को ये ब्रेक करती है बुक, एंड दैट्स वाई दिस बुक इज़ समथिंग दैट आई लाइक टू मच। तो इस बुक को ही क्यों चुना मैंने एक्चुअली, तो ये इसका योनर, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका योनर है साइंस फिक्शन, एंड आई माई सेल्फ एम अ बिगेस्ट साइंस फिक्शन लवर। सो एक्चुअली साइंस फिक्शन होती क्या है? साइंस फिक्शंस का मेन मोटिव ये होता है कि वो आप लोगों की क्रिएटिविटी को एनहेंस कर सके, वो आपकी विजुअलाइजेशन को एनहेंस करे, और आप लोग उस मूवी को देखने के बाद आप लोगों की क्रिएटिविटी और माइंडसेट थोड़ा ब्रोडन हो जाए, जस्ट दैट मच। बट ये जो साइंस फिक्शन बुक है दैट आई विल बी रिव्यूइंग टुडे, ये उन बाकी साइंस फिक्शन मूवीज़ या साइंस फिक्शन बुक्स से थोड़ी सी अलग है। ये एक्चुअली एनहेंस करती है हमारी क्रिएटिविटी, but at the same time it also helps us to learn certain things that can be helpful for enhancing our social relationships. There is a brilliant way of writing that has been adopted by the author. The author's name, by the way, is Krishna Sri Teja D, and he has written it beautifully. So बुक रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक दो बातें बताना ज़रूर चाहूँगा। फर्स्ट वन इज़ अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ एलियंस। Existence of aliens, it has been for years, it has been a source of speculation for individuals, not only astrophysicists, not only theoretical physicists, not only scientists, but also the common man. बहुत लोग ये सोचते हैं कि एलियंस एग्जिस्ट नहीं करते, बहुत लोग ये भी सोचते हैं कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं, एंड thus it becomes a great controversial topic. तो इनमें से दो सबसे बड़े थ्योरीज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगा, दैट कैन माइट बी हेल्पफुल इफ़ यू स्टडी डीपर इनटू इट, इट माइट बी हेल्पफुल फॉर यू टू कम टू एनी कंक्लूजन। लेकिन एक बात मैं स्टार्टिंग में ज़रूर बताना चाहूँगा कि एस्ट्रोफिज़िक्स एक ऐसा टॉपिक है जिसकी कंक्लूजन पे हम नहीं पहुँच सकते, ईजिली उसके कंक्लूजन पे हम नहीं पहुँच सकते, बिकॉज आर डिवाइसेस आर प्रिमिटिव,
आर डिवाइसेस आर नॉट दैट एडवांस्ड कि हम लोग पूरे यूनिवर्स को एक्सप्लोर कर सकें। एंड दैट्स वाई आई थिंक कि एस्ट्रोफिज़िक्स में it is too difficult to get into any what we say is conclusion. So the main 2 points that I was talking about are, first of all, that supports the existence of aliens. It was given in 1961 by Drake. He formulated by using his assumptions and probability concept. He formulated an equation known as the Drake equation. He used various concepts in this Drake equations and various scientific calculations. और इस ड्रेक इक्वेशन के अनुसार उन्होंने ये बताया कि देयर कैन बी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एडवांस स्पीशीज़ अदर देन अस ऑन अदर प्लैनेट्स। उन्होंने इस चीज़ को क्वांटिफाई करने की कोशिश की, कुछ नंबर्स लाने की कोशिश की, एंड it actually came out that there can be probability of existence of millions and billions of other species other than human beings on outside the earth. So that was something that might be enhanced the concept of existence of aliens. और दूसरी तरफ जो लोग एग्जिस्टेंस ऑफ एलियंस को डिनाई करते हैं, उनका बिगेस्ट कॉन्सेप्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्सेप्ट है द फर्मी पैराडॉक्स। फर्मी पैराडॉक्स सेज दैट इफ देयर आर एलियंस एग्जिस्टेंट इन दिस यूनिवर्स, तो वो सारे एलियंस हैं कहाँ पर? अगर एलियंस हैं, चलो बात मान ली, अगर एलियंस हैं वो हमसे एडवांस्ड भी हो सकते हैं, इन्फीरियर हो सकते हैं, बट वो हमसे एडवांस्ड भी हो सकते हैं। अगर एडवांस स्पीशीज़ है तो वो हमारे पास क्यों नहीं आ रहे हैं? इसके बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं, लाइक दे डोंट वांट टू इंटरफेयर इन एनी अदर स्पीशीज़ लाइफ, और दे डोंट केयर एनीथिंग अबाउट आवर स्पीशीज़. So there can be answers, but these are mere speculations or probabilities or assumptions, right? We can't say anything for sure. That's why I said, to reach a conclusion in astrophysics, it is one of the most difficult tasks. So what are the recent advancements that have been taking place for searching of existence of aliens is one of the most fascinating one that I like. It is SETI, that is Search for Extraterrestrial Intelligence. बहुत सारे रेडियो सिग्नल्स को डिटेक्ट करने की कोशिश की जाती है इनके थ्रू, और बहुत सारे बायोकेमिकल सिग्नेचर्स को डिटेक्ट करने की कोशिश की जाती है। इनमें से सबसे रीसेंट वाला जो मैंने पढ़ा था वो था वीनस से कुछ बायोकेमिकल सिग्नेचर्स को डिटेक्ट किया गया, और वहाँ पर बताया गया कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ माइट बी पॉसिबल। इंटेलिजेंस नो, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ माइट बी पॉसिबल. So that was it. Like there can be too many speculations of it that aliens exist or not. There can be too many arguments for it as well. But reaching a conclusion over it, it is really a difficult task for common man as well as the scientists. So without wasting much of your time now, I would like to get on to what was the main topic of today. Now, I don't know how many of you have been seeing book reviews, but I am not an individual who would like to tell you the storyline or story plot of this book, because I seriously feel that this book is such brilliantly written that you should surely read it. Reading बहुत ज़्यादा helpful होती है actually, and reading a book like this, it would never bore you. It is a thrilling book, it would never bore you, right? So that's why I want that you should read this book. और अगर मैं आपको स्टोरी प्लॉट बता देता हूँ, स्टोरी लाइन बता देता हूँ, आपको स्पॉयलर्स मिल जाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा इस बुक को पढ़ने का. सो दैट्स वाई आई वुड नॉट लाइक टू टेल यू द स्टोरी प्लॉट, रेदर आई वुड लाइक टू टेल you something that I have learned from this book. As I earlier discussed, that this book is something that has been teaching me a lot many other things except the scientific theories. Like it discusses a lot of scientific things like wormholes, supernovas, grandfather paradox, or gravitational waves and too many others. लेकिन इन साइंटिफिक थ्योरीज के अलावा भी इसमें बहुत सारी और चीज़ें हैं जो हमारे सोशल इश्यूज़ को एड्रेस कर सकती हैं, हमारे सोशल रिलेशनशिप्स को एनहेंस करने में हेल्प कर सकती हैं अगर हम उन्हें ठीक से फॉलो करें तो. सो स्टार्टिंग विद द
podcast, starting with the review, I would like to tell you first thing that I have learned from this book, and it is really interesting that it was what I found on the chapter 1, page 1, and the second paragraph of this book. The line says that sometimes losing for our precious ones is the best thing you can do. There is a backdrop to this line that there was a fight between Saksh, and Saksh, by the way, is the protagonist of this story, and his wife. But what he says over here is sometimes losing for precious ones is the best thing you can do. एंड बहुत सारे लोगों के लाइफ में ये प्रॉब्लम आती है कि वो लोग रिलेशनशिप इश्यूज में आ जाते हैं. दे गेट इनटू अ फाइट, और वो फाइट को बहुत ज़्यादा बड़ा बना देते हैं, राइट. अपनी आर्ग्यूमेंट्स रखते जाएंगे, क्रिटिसाइज़ करेंगे दूसरे को, और आर्ग्यूमेंट बढ़ती जाती है, कॉम्प्लिकेशंस बनते जाते हैं. इट इज़ नॉट ओनली विद योर मीन्स फीमेल काउंटर पार्ट और मेल काउंटर पार्ट. It is between family members, between relatives, and if you want to enhance your social relations with the society as well, you should need to learn this thing. And one of the best things that I can remember from this thing, this line, is that there is a very small difference, very small difference between self respect and ego. और अगर वो डिफरेंस को हम ख़त्म कर देते हैं, then it can lead to various huge and hazardous complications. हमें second thing, and one of the most interesting things that I found in this book was on page number 10 of the second paragraph, second chapter, third last paragraph of this book. And it says, like, when I was reading the book for the first time, I skipped this line. बट जब मैंने दूसरी या तीसरी रीडिंग दी इस बुक को, आई गोट टू अंडरस्टैंड द डीप मीनिंग ऑफ दिस लाइन. द लाइन सेज, यू आर नॉट ऑलवेज दैट लकी इनफ टू शेयर योर मील विद योर फैमिली. इस लाइन का बहुत बड़ा एक बैकड्रॉप था, जहाँ पर एक बच्चा अमेरिकन टूरिस्ट्स का एक बच्चा खो गया था. उसके बाद ये लाइन बोली गई थी. I won't discuss much on that backdrop of the story or this line, but जो मैं बात बोलने वाला हूँ वो कुछ लोगों के साथ रिलेटेबल होगी, मेरे साथ भी है. एंड इट इज़ समथिंग लाइक, कभी कभी हमारे फैमिली मेम्बर्स के साथ छोटी छोटी बातों पे लड़ाई हो जाती है, एंड वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि वो बात उतनी कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत होती नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम्स. एंड वी हैव अ फाइट एंड वी रिफ्यूज़ टू ईट, एंड कुछ कॉम्प्लिकेशंस बन जाती है, कुछ कम्युनिकेशन गैप आ जाता है. एंड दैट्स वेयर दिस लाइन टीचेस मी इज़, everyone is not lucky enough to share their meal with their family. अगर आप उतने लकी हैं कि आप अपनी फैमिली के साथ अपना मील शेयर कर पा रहे हैं, then feel yourself to be lucky. तो आपको उस लड़ाई को ख़त्म करना होगा, आपको उस कम्युनिकेशन गैप को ब्रिज अप करना होगा. कभी कभी इग्नोर करना भी सीखना चाहिए. एंड दैट एक्चुअली लीड्स मी अप टू माई नेक्स्ट पॉइंट. इट कैन बी फाउंड आउट ऑन चैप्टर 3, पेज नंबर 12 ऑफ दिस बुक, एंड द लाइन सेज, समटाइम्स इट इज़ बेटर टू इग्नोर इट इवन इफ इट इज़ अ रियलिटी. सो इसका भी एक बहुत बड़ा बैकड्रॉप है, कुछ स्ट्रेंजर बैकड्रॉप है फ्रॉम द थिंग दैट आई एम गोना टॉक अबाउट, लेकिन ये प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ. मैं बहुत बड़ा क्रिकेट फ़ैन हूँ. क्रिकेट इज़ एन इमोशन. आई एम अ वेरी बिग क्रिकेट फ़ैन. लेकिन जब 2019 वर्ल्ड कप हुआ था एंड इंडिया अनफॉर्चुनेटली लॉस्ट इन दैट सेमीफाइनल्स, फॉर अबाउट आई लिटरली क्राइड ऑन दैट डे, एंड फॉर अबाउट 2 weeks I was overthinking again and again over the same thing. इतना मैंने उस चीज़ को ओवरथिंक कर लिया था कि इट एक्चुअली डिग्रेडेड माई क्वालिटी ऑफ स्टडी ड्यूरिंग दोज 2 weeks. मैं पढ़ नहीं पा रहा था उसके कारण. फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि इवन इफ़ इट इज़ अ रियलिटी, मान लिया ये रियलिटी है, मान लिया मैं क्रिकेट फ़ैन हूँ, आई वॉज सैड कि इंडिया हार गई, बट
अब उस चीज़ पे ओवरथिंक करके, उस चीज़ को रिग्रेट करके, मैंने एक चीज़ वहाँ से ज़रूर सीखी थी, जो ये लाइन भी ज़रूर बताती है कि कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो रियलिटी में बेशक हो, लेकिन अगर वो आपका टाइम वेस्ट कर रही हैं, आपको ओवरथिंक करा रही हैं, देन यू शुड लर्न टू इग्नोर इट, एंड it would surely help you in your future. Here I would try to give you the last point of today's podcast, and I would like to end up over here. So the point is, on page number 14 of the same chapter, it says, well, you humans always restrict your thoughts to only a few presumptions and conclusions, but you never really focus on the minute details of the acute situation that surrounds it. There are complex things in this universe that you should understand. अब इस चीज़ का एक बहुत डीप मीनिंग है। लास्ट लाइन को छोड़ दीजिए, लास्ट लाइन अगर हम छोड़ भी दें यूनिवर्स के बारे में जो बोली गई है, तो भी इसका एक बहुत बड़ा डीप मीनिंग है। कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जब हम लोग अपने माइंड को मीन्स रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं एक छोटी सी जगह तक। हम एक चीज़ को मान कर बैठ जाते हैं, एंड इवन इफ़ कुछ आर्ग्यूमेंट्स उसके खिलाफ लाई भी जाती हैं, देन ऑल्सो वी आर नॉट ready to believe over them, and our thought process is restricted. इसका मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल, अगर कोई वॉर होती है, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ इजराइल पैलेस्टीन वॉर, तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग क्या करता है? हमारी थॉट प्रोसेस रिस्ट्रिक्टेड है, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन हमारी थॉट प्रोसेस रिस्ट्रिक्टेड है। वो सोचेगा कि सिर्फ और सिर्फ इजराइल पैलेस्तीन ही लड़ाई कर रहे हैं। बट जो पर्सन ब्रॉडली सोचने की कोशिश करेगा, जो अपने थॉट प्रोसेस माइंडसेट को ब्रॉड करने की कोशिश करेगा, उसे पता होगा कि बैकड्रॉप में क्या चीज़ें चल रही हैं। उसे पता होगा कि कैसे मींस यूएस से इससे अफेक्ट हो रहा है, कैसे इंडिया उससे अफेक्ट हो रहा है, कैसे रशिया उससे अफेक्ट हो रहा है, कैसे मिडल ईस्ट उससे इफेक्ट हो रहा है। एंड दैट्स वेयर वी हैव टू increase our thought process. That's where creativity will also come in, and that's where I guess it is most important to build this. So guys, hope you would have liked the video, and part 2 of this book's review would be launched soon on the same channel, so you can subscribe as well as ring the notification bell so that you get notified for it. And one more thing before ending it is that if you want to get to know about the story plot, like I don't personally feel that you should do that through a podcast, you should actually read the book. But if you want to know about this story plot, you can comment your views, you can comment your suggestions. We will surely look for it, and we will try to improve ourselves. So thank you for watching, and you can like and share as well if you like the video. Thank you.